بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 145 with ترجمہ and translation in Urdu. واو اور کتبنا ہم نے لکھا، کتبنا ہم نے لکھا، فی الالواح تختیوں میں، فی کا مطلب میں، الواح تختیوں، تختیوں میں. تختیاں کون سی؟ جو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے جب بلایا تھا تو دی. اللہ کہتے ہیں ہم نے تختیوں میں کیا لکھا؟ من کل شیء، ہر ایک چیز میں سے، کلی ہر ایک شیء چیز، من سے ہر ایک چیز میں سے، موعظۃً نصیحت بھی لکھی، و تفصیلا اور تفصیل وضاحت بھی لکھی، لکل شیء ہر ایک چیز کی. اللہ کہتے ہیں اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی. فخذھا، تو پکڑ لیجئے اس کو، بقوہ، پوری طاقت کے ساتھ. طاقت مین مکمل عمل کریں اس پر، اتنی طاقت سے کہ کبھی سستی نہ کریں. دین میں یہ چیز ہے کہ جو دین تمہیں ملا ہے اس کو مکمل فوکس کریں اور اس پر عمل کریں، کبھی سستی نہ کریں. وَأْمُرْ، خود بھی اس کو مضبوطی سے پکڑ، وَأْمُرْ اور حکم کیجئے، قومک، اپنی قوم کو بھی، یأخذوا کہ وہ بھی پکڑ لیں، بِأَحْسَنِہَا اس کے نیک اور اچھے کاموں کو. اس کے پکڑ لیں وہ بھی نیک اور اچھے کاموں کو. سَأُرِيكُمْ، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو، ان قریب، اری دکھاؤں گا میں، تم کو، دار گھر، فاسقین فاسقوں کا. ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں دار الفاسقین، فاسقین کا گھر. اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ان قریب ہم تختیوں میں، وَكَتَبْنَا یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں دی اس میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ ہر ایک چیز کے بارے میں موعظہ، نصیحت بھی، اور ہر چیز کی تفصیل بھی. بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اس پر عمل کیجئے، اس کو اپنا دین سمجھ لیجئے، اس کو کبھی بھولنا نہیں، چھوڑنا نہیں، سستی نہیں کرنی، اگنور نہیں کرنا، اس سے نظریں نہیں پھیرنی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اکیلے کام نہیں کرنا بلکہ یہ ٹیم ورک کام ہے، خود بھی کرنا ہے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ اور اپنی قوم کو بھی حکم کیجئے، یأخذوا بِأَحْسَنِہَا اس کے نیک اور اچھے کاموں کی پیروی کریں، ان کو پکڑیں. یہاں سے مراد نیک اور اچھے کاموں سے کیا مراد ہے کہ نیک اور اچھے کام پکڑنا؟ بالکل یہ وہی بات ہے جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر بات سمجھ آتی ہے کہ اچھوں کو پکڑ لینا، بروں کو چھوڑ دینا. اچھوں کو پکڑنے کا حکم دیا نا، تو برے آپ ہی خود بخود ہی مائنس ہو گئے، چھوٹ گئے نا، کہ تم ان کو چھوڑ کر اچھے اچھے کاموں کو فوکس کرنا، ان کو پکڑ لینا، بس وہی کرنا، باقی سب کاموں کو چھوڑ دینا، کوئی نہیں کرنا. تو یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے. یقین مانو جن قوموں نے اللہ کو نہیں نہ مانا، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کے دین کی توہین کی ہے، ان قریب میں تمہیں ان لوگوں کے آثار دکھاؤں گا، کیسے ان کی بستیوں کو میں نے نیست و نابود کر دیا. اسی بات کو اللہ کہتے ہیں سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. وہ بستیوں سے تم گزرو گے جہاں سے وہ لوگ ہاتھ دھو کر چلے گئے، تباہ و برباد ہو کر چلے گئے. جہاں پہ وہ بسا کرتے تھے کبھی گہما گہم ان کی بستیاں ہوتی تھی، اور وہ بڑے ناز و نخرے میں، تکبر میں آ گئے. ہم تو کوئی اور بھی، اتنے شاہانہ لائف سٹائل تھے ان کے، اتنی بلندیوں کو چھوتی ترقیاں تھی ان کی، اتنی وہ خودمانیاں کرتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟
उनके घरों पर नजर डालो कि उनके घर कैसे तबाह हो गए हैं, वो अल्लाह की इबरत का निशान बन गए हैं, तुम के लिए दरसे हदीस दरसे कुरान बन गए हैं, दरसे इबरत बन गए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो लिहाजा अब करना क्या है, अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बनना है। अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हमें क्या दिखाते रहते हैं, नाफरमानों का अंजाम। आज भी ऐसे होता है, हम देखते हैं कि फलां जो है वो ठीक नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं, हम उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने ही काम में मगन रहना चाहते हैं, तो वो रह रहे होते हैं, हम उनका अंजाम बार बार देखते हैं। कभी वो कहाँ जिल्लत का शिकार होते हैं, कभी वो कहाँ, कभी कहीं उनको डांट पड़ती है तो कभी कहीं उनको मार पड़ती है। ये सारा सिस्टम उनकी लाइफ में चल ही रहा होता है। ये भी वही चीज़ है। इन चीज़ों से बंदा देखने वाला भी सीखता है, और जिस पर आ रही है उसको भी अल्लाह सिखा रहे हैं ठोकर लगा लगा कर कि तुम्हें ये गलत रास्ता चूज़ करने में ये सारे नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, तो लिहाजा चॉइस अपनी बेहतरीन बनाएं, अच्छी और नफासत वाली पाकीज़ा चॉइस, ईमान वाली तहारत वाली चॉइस। अगर आपको दो लोग हैं, एक आम और मामूली है और एक ख़ास यूँ समझ ले शाहाना लाइफ है उसकी, बादशाह है वो वक्त का, लेकिन वक्त के बादशाह का ईमान नहीं है। जो आम सा बंदा बैठा हुआ है उसका ईमान बहुत अच्छा है, उसके पास पूरी दुनिया है, जिसके पास ईमान नहीं, पूरी दुनिया है, पूरी कामयाबी है उसके पास आपके मसाइल का कुछ हल भी आपको नज़र आ रहा है। और जो आम बंदा है उसके पास आपको कोई मुफाद भी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ एक ईमान है। तो ईमान कहाँ कहाँ डालोगे, आपको ये शैतान वसवीसे डाल रहा होगा कि तुम उसकी तरफ वोट दे दो, उसके हो जाओ, तुम्हें वो माला माल कर देगा, तुम्हें कभी ना कभी फ़ायदा देगा। ये सिचुएशन तुम्हारे साथ शैतान पैदा कर देता, तो तुम क्या करोगे उस टाइम, क्या करोगे, किसको चुनोगे? हाँ जी, खुद देखिए आज हमारी लाइफ में वाकई ये चीज़ है, हम कदम कदम पे ईमान को चूज कर रहे हैं या इसको ठुकरा रहे हैं, या गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, या बार बार अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इसके बावजूद कि हमें पता है ये गलत है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए हमारे दिल के ईमान की रोशनी नहीं जल रही, मदम पड़ गई है, बुझने ही वाली है। उसको रोशन कीजिए, उसकी हिफाजत कीजिए, उसे तरक्की दीजिए। कामयाबी का यही राज है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, सअस्रिफु अन आयाती अल्लज़ीना, सअस्रिफु अन करीब मैं अपनी आयात से फेर दूंगा। सा का मतलब है अन करीब, असरीफु मैं फेर दूंगा, अन आयाती अपनी आयात से, अन करीब मैं फेर दूंगा अपनी आयात से, अन आयाती अल्लज़ीना उन लोगों को, यतकब्बरूना जो तकब्बुर करते हैं, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, बिग़ैरिल हक़ के बगैर। अन करीब मैं अपनी आयात से फेर दूंगा उन लोगों को जो ज़मीन में नाहक बड़े बन फिरते हैं, मैं करते फिरते हैं, तकब्बुर करते हैं। वो लोग अगर उनकी हालत भी ये है, सिचुएशन भी ये है, अल्लाह कहते हैं अनकरीब मैं अपनी आयात से फेर दूंगा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान के अलावा दूसरे लोगों के बारे में भी इरशाद फरमाया, मैं अपनी निशानियों से जो नफ्से आफाक में कसरत से मौजूद हैं, जो आफाक आलम में कसरत से मौजूद हैं, इनसे इबरत हासिल करने से और अल्लाह ताला के याद के फ़हम से इन्हें रोक दूंगा। ये बात है इसमें, किसके अंदर, सअस्रिफु अन करीब मैं फेर दूंगा, अन आयाती अपनी आयात से, उन्हें समझ ही नहीं आएगी मेरी आयात की, मैं उन्हें समझने दूंगा ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है, उनके दिल की ज़मीन इस काबिल नहीं है कि मेरे अजीम फ़हमे कुरान को वहाँ रखा जाए, सो इसलिए मैं वहाँ रखता ही नहीं। फिर कौन है वो लोग जिनके दिल की ज़मीन इतनी बिगड़ चुकी है, जो तकब्बुर करते हैं, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, बिग़ैर हक़
हक के बगैर। तकब्बुर तो हक के बगैर है ना। हक वाला तकब्बुर क्या है, ये जो हज उम्रे पे करने वाले रमल चाल चलते हैं ना, तो इसमें बड़ी ताकत जाहिर होती है। तो काफिर जो थे वो मायूस हो जाते थे कि ईमान वालों में ताकत कितनी है। तो ये तकब्बुर ठीक है कि ईमान और इस्लाम के लंबरदार बन के, अपनी ज़ात के नहीं। जब हम अपनी ज़ात के लंबरदार बन के खड़े होते हैं ना, तकब्बुर करते हैं, वो तकब्बुर हराम है। जो हम अल्लाह की ज़ात के लंबरदार, इस्लाम की ज़ात के लंबरदार, अपने नबी की ज़ात के लिए लंबरदार बन के बड़े बनते हैं ना, कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम सच्चे हैं, हमारा दीन सच्चा है, हम सबसे अजीम हैं, हम ताकतवर हैं, हम कामयाब हैं, तरक्की हमें मिलेगी, तो फिर ये सब ठीक है। कहा बगैर हक के, ये हक पर नहीं है ना, ये गलत अपने लिए तकब्बुर करते हैं। और अगर वो देख लें, उनकी सिचुएशन तो ऐसी है, हालत तो ऐसी है, तुम्हें क्या बताऊं, अगर वो देख लें ना, कुल्ला आयतिन, हर आयत को, हर निशानी को, हर मोजज़े को, तो फिर भी ला युमिनु, वो ईमान ना लाएंगे बिहा, इसके साथ, फिर भी वो इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। वइन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा, अगर वो देख लें हर आयत, हर निशानी, हर मोजज़े को, तब भी वो इस पर ईमान न लाएंगे। वइन यरौ सबील रुश्दी, और अगर वो देख लें सबील रुश्दी, रुश्दो हदायत के रास्ते को, तो फिर भी ला यत्तखिज़ूहु सबीला, वो उसे अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, वो उसको रास्ते के तौर पर नहीं चुनेंगे। वइन यरौ सबीलल गय्यी, और अगर वो देख लें सरकशी का रास्ता, तो उनकी हालत ऐसी होगी, देखे जरा इनकी बेवकूफ़ियाँ, यत्तखिज़ूहु, तो वो पकड़ लेंगे इसको सबीला, रास्ते के तौर पर, उसे रास्ता बनाएंगे अपना, उसे अपने लिए रास्ता चुनेंगे, किसको, गई, सरकशी वाला, अल्लाह की नाफरमानी वाला, तकब्बुर वाला, झूठा रास्ता। अल्लाह कहते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम, ये क्यों है ऐसा, इस वजह से क्योंकि कज़्ज़बू, उन्होंने झुठलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, वकानू, और थे वो ऐसे, अनहा, इन आयात से, गाफिलीन, गफलत बरतने वाले। हमारी आयात से हर टाइम इन्होंने गफलत बरती, हमारी आयात को इग्नोर मारा, तो हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। इस आयत में यही बताया जा रहा है कि अल्लाह उन आयत से फ़ायदा नहीं देता। अल्लाह कहते हैं अनकरीब मैं अपनी आयत से फिर दूंगा उन लोगों को जिन्होंने बगैर हक के तकब्बुर किया। और वो लोग ऐसे हैं, जब वो बुराई का रास्ता देखते हैं उसे अपना रास्ता मान लेते हैं, और जब हदायत का रास्ता, रुशद का रास्ता और अल्लाह के दीन का रास्ता देखते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं कोई भी निशानी आ जाए, मौजूदा आ जाए, वो मानने वाले नहीं है। असल में फिर ऐसा क्यों है, ये अल्लाह ही उनको हदायत नहीं देना चाहते, क्यों अल्लाह कहते हैं ये इस काबिल ही नहीं है, लायक ही नहीं है मेरी हदायत के, मेरे दीन के। तो इससे क्या मतलब अखज़ होता है, अल्लाह कहते हैं ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों, आँखों, कानों सब पर मोहरें लगा दी है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन से हमेशा महफूज रखे कि अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज़ हो जाए कि हदायत के दरवाजे बंद हो जाएं, अल्लाह ना करे। वल्लज़ीना, और वो लोग, वल्लज़ीना तजवीद हो रही है ना साथ साथ, और वो लोग कज़्ज़बू, जिन्होंने जुठलाया, बिआयातिना, हमारी आयात को, वलिक़ाइल आखिरती, और आखिरत की मुलाकात को। वो लोग जिन्होंने झुठलाया हमारी आयात और आखिरत की मुलाकात को, तो इस झुठलाने की वजह से ही क्या हो गया, हाबितत, मिट गए, हाबितत, मिट गए, आमालुहुम, उनके आमाल किसी काम के न रहे, कोई फायदा नहीं। जब ईमान नहीं तो अमल काम नहीं आने, ये तो एक आर्जी जिंदगी लाइफस्टाइल बन के रह जाएगा। अमाल
अमाल हसना जिनका जजा मिलेगा वो नहीं रहेंगे, बल्कि वो वाले अमाल बन जाएंगे जिनका बुरा बदला है, जहन्नुम इसका बदला है। क्योंकि ईमान की जगह कुफर ने जो ले ली, आजिजी की जगह तकब्बुर ने जो ले ली, अल्लाह की मर्जी की जगह मनमानी ने जो ले ली, तो फिर इसका बुरा असर तो अच्छे असर की वजह से होना ही है ना। जहां पर अच्छा असर पड़ना था अब वहां पे बुरा असर पड़ेगा, जहां पे जन्नत अलॉट होनी थी अब वहां पे जहन्नुम अलॉट हो जाएगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह कहते हैं उनके आमाल मिट गए, चाहे हसना आमाल भी थे खत्म हो गए, उनका अब कुछ नहीं मिलेगा, वो सिक्का खोटा हो गया। हल युजज़ौना, नहीं वो बदला दिए जाएंगे, इल्ला मगर मा कानू यअमलून, उसी का जो वो अमल करते थे। अल्लाह कहते हैं अब जहन्नुम मिले या जन्नत, ये तो उनके किए का बदला मिल रहा है। किसी पर कोई ज्यादती नहीं है, किसी पर किसी को कोई बर्तरी नहीं है, हर एक अपना किया ले रहा है। ये मत कहना दुनियादारों की तरह, जैसे दुनिया में कहते हैं लो भी उसकी साइड ली गई है, उसको दिया गया हमें नहीं दिया गया, उसको नवाजा गया हमें नहीं नवाजा गया, उसको शान दी गई हमें नहीं दी गई। अब अल्लाह की नज़र में तो इंसाफ है, इंसान में तो ये कमज़ोरी हो सकती है लेकिन रहमान की नज़र में तो नहीं ना हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती।